So good afternoon to all of you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yes, hi Tushar, hi Shravani. Chalo, good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, very good afternoon, Tanay, Samar. Good afternoon, Himanshi. Good afternoon, Sanchit. Good afternoon, Manasvi. So good afternoon to all. Good afternoon, Ayush. Good afternoon, Rucha. Yes, good afternoon to all. So Zainab, good afternoon. Yes, good afternoon to all of you, everyone. Just change this to host only. So good afternoon, Sanika, Kaushik, Aditi, Rupesh, Mansi, Isha. Good afternoon to all. Good afternoon, everyone. Yes, we will going to solve that PDF only, Sairaj. It's correct. जो PDF that was sent on the group, so we will going to solve that only. Good afternoon, Kashmira, Bhakti. So good afternoon, all. Sanket, the contact to the branch, the respective branch will going to give you the recording. Okay. So good afternoon. Good afternoon. Yes. Good afternoon to all. Just wait for 1 to 2 minutes, then we will start. Okay. Let's wait for others to join also. Sir, there is background noise. Good afternoon. Rupesh, just contact to the branch. They will give you the sheet. I will going to share the sheet. Okay, all of you. Make 2 minutes. Just give me 1 minute. I will share the sheet with you. So on the screen आपको sheet दिखेगी तो उस हिसाब से हम solve करेंगे वो. Okay. These तारीख पर है ना सब
Yes, that's very clear, Professor. Which chapter? So we will going to start with the light only. हम सबसे पहले light topic करते हैं. So good afternoon, Arya. Cycling, rules, rules. There's a status for you. Yes. Good afternoon, Ishani. Same to you. Glad to see you after a very long time. Good afternoon, Akansha. Yes, Prem. चलो आज हम क्या करेंगे, लाइट टॉपिक जो आपको हुआ था 10th स्टैंडर्ड में, सो वही हम उसके ऊपर जो क्वेश्चन है, जो शीट है वो आपको सबसे पहली बात तो खुद को आपको करनी है सॉल्व. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, वेट, एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, आई विल अनम्यूट करता हूँ मैं सबको. हाँ, आई विल म्यूट ऑल. सबको देखो मैंने म्यूट किया है. ओके नहीं, किसने बोला लाइट नहीं है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक इज देयर फॉर योर सीईटी. साईराज, डोंट एनोटेट प्रतीक, otherwise I will remove you from the group. चलो, now tell me, are you able to see the screen over here? सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, okay, that's good. ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, so let's try to solve this. Yes, okay, चलो. Rainbow is seen in a sky due to combined effect of. You can't unmute yourself now, na? Yes, all the classes are combined. That's right. So rainbow is seen in a sky due to combined effect of dispersion, refraction, reflection, all of the above. That's right. सबके आंसर्स करेक्ट है. वेरी गुड श्रावणी, ऑल ऑफ यू. प्रतीक, गायत्री, सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. याद है ना आपको? सपोज दिस इज अ ड्रॉप ओवर हियर. So when a light falls over here, so यहाँ पे पहले refraction होता है. There is a refraction. I hope that you must be knowing that. उसके बाद यहाँ पे reflection होता है, and again there is a refraction over here. So this is a dispersion of light. यहाँ पे light disperse हो गई ना, violet color and red color. ये आपको theory में हुआ है, याद है ना? Combine. So there is no any other option. That's right also. It's a combined effect of all of the above. Correct. Very good. चलो, next question. The blue color of ocean is seen to be scattering, absorption, reflection. क्या आंसर होगा इसका? What would be the answer of this? ये annotation disable क्यों नहीं हो रहा है? Just wait. एक मिनट, just 1 minute. ये annotation पहले disable करता हूं मैं. Okay. Chalo, what is the answer of this? The blue color of ocean is seen to be due to the scattering of light, absorption of light, reflection of light. What would be the answer? Absorption of light? Nahi, absorption is the wrong answer. The correct answer is due to the scattering of light. Option A is correct answer. Reflection nahi, it's due to the scattering of light. Yes, maximum students had given the right answer. Correct hai. Chalo, next. Find the odd man out. Find kar lo. Odd man out. Dispersion, mirage, refraction, induction. इंडक्शन आपको हुआ भी नहीं. देयर इज नो इंडक्शन. एक इलेक्ट्रिसिटी में आता है. सो ये आपके सिलेबस में तो इंडक्शन आर्टिकल था ही नहीं 10th स्टैंडर्ड को. यू हैव लर्नड अबाउट डिस्पर्शन. आपने मिरेज भी यू हैव लर्न दैट. रिफ्रैक्शन भी आपने लर्न किया. इंडक्शन तो नहीं है. मिरेज नहीं मालूम क्या कौशिक? सो मिरेज नहीं होता है ना वो. सो इन अ डेजर्ट एरिया, मान लो सपोज इफ देयर इज अ ट्री ओवर हियर इन अ डेजर्ट एरिया, and say suppose this is a road over here, and if you are very far away, so the light coming from above, so यहाँ पे क्या होता है? hot air है ना. This is the hot air, and this is nothing but ये जो air होता है जो road के नजदीक होता है, there is a cold air. So due to difference in the hot air, मतलब due to the difference in the density of this air, so light ऐसे पूरे ये reflect होती है in this way. So in short what you दिखता है, ये आपको जो ट्री है ना, इस ट्री का रिफ्लेक्शन आपको रोड पे दिखता है. As if there is a water is present.
ऐसा लगता है यहाँ पे पानी और उस पानी पर उस ट्री का इमेज आता है. आई हैव ऑलरेडी शेयर वेदिका, ये मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप पर. वेदिका नहीं किया होगा तो आई विल सेंड यू आफ्टर द लेक्चर. ओके, आफ्टर दिस लेक्चर आई विल शेयर. इट हैपेंस इन अ डेजर्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम डेजर्ट एरिया में ये दिखता है आपको. ब्लैक स्क्रीन दैट इज ड्यू टू द चैट ऑप्शन. आदिति, जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना साइड में, वो चैट ऑप्शन है. श्रेया, पूरा चैप्टर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम. श्रेया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल द चैप्टर, ये ऑलरेडी आपने सीखा है. सो व्हाट इज माय कंसर्न इज दैट हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, दैट इज आवर मेन कंसर्न. जितने क्वेश्चन हो सके उतना मैक्सिमम हम कवर करेंगे. सॉल्व पीडीएफ, स्वप्निल सॉल्व पीडीएफ नहीं होता है. सो दिस इज अ पीडीएफ ओनली. ओके, सो इतना ही आपको. हाईवे पे होता है, दैट्स राइट. मिरेज हाईवे पे होता है. आदिति करेक्ट है, वेरी दैट्स राइट. वाटर पर जो इमेज दिखता है ना, ब्लरी इमेज इन द डेजर्ट एरिया, सो उसे हम मिरेज कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ मिरेज. यस यस नीरज, जो भी आपको गवर्नमेंट क्वेश्चन बैंक देते हैं वो आप पहले स्टडी कर लो. स्टडी दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नो, यू डोंट हैव टू सबमिट एनीथिंग. स्वयं आपको कुछ सबमिट नहीं करना है. मिरेज इज अ फॉल्स व्यू. दैट्स राइट मोक्ष, वेरी गुड. Mansi, contact to the branch. Just contact to the branch. Tell them I want the PDF that is been shared by the sir. They will give you. Okay. Yes. नोटबुक पे मैं आपको ये शीट सेंड करता हूँ. अगर पॉसिबल हो तो आप प्रिंट आउट निकाल के टिक कर लो, या फिर क्या करता हूँ आपको, आप नोटबुक में आंसर्स लिख लो. ऐसे कुछ. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ. ओके, ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको मैं सेंड करता हूँ. डोंट वरी. Yes, MCQ भी क्वेश्चन है. आई डोंट नो, बट ही वाज सेइंग दैट होता है. चलो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. एवरीवन, ऑल ऑफ यू, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ. हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं. द कलर ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कंबाइंड ड्यू टू द प्रोड्यूस्ड व्हाइट लाइट. ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कंबाइंड टू रिप्रोड्यूस व्हाइट लाइट. ट्रू है ना? इट्स ट्रू. दैट्स राइट. यस, ऑल आर करेक्ट. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ऑब्वियसली. With reference to the refraction of light through a rectangular glass slab, following points is are true. कौन सा point true है? Refraction of light occurs at two parallel surface. Emergent ray is in the direction of incident ray. Emergent ray is laterally displaced. All of the above. क्या आंसर होगा इसका? All of the above is the correct answer. All of the above right answer है ना? Yes, that's right. All of the above is the right answer. Correct. Correct. Very good. Duration of CET exam that I don't know. Maybe 1 hour. कुछ तो 1 hour, 1.5 hour. I don't know that. मतलब मुझे नहीं मालूम. 2 hours का होता है. Okay. तनिष देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन का ऐसा था ना, laterally inverted. For example, if I take a triangular prism, अगर आपने ये triangular prism ले लिया, और अगर आपने यहाँ पे inverted triangular prism ले लिया, so suppose if you send a white light over here, it will going to split into 2 colors ना. ये 2 colors में split होता है. So this would be red, this would be violet. Again यहाँ पे ऐसा वो होगा, हाँ या नहीं? Again it will going to recombine over here. So यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? It will be like this. ये ऐसा फिर से refract होगा, ऐसा कुछ refract होगा, फिर से ऐसा refract होगा, and ultimately you will get a white light only. Recombination of prism. Yes, this recording will be available to us. Yes, that's right, Bharat. So this is a recombination of white light using a thin prism. Yes, ये आपको आर्टिकल हुआ था 10th स्टैंडर्ड में, याद आएगा, याद होगा तो. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सबको पता है, स्नेल्स लॉ. ओके, बाकी तो आई थिंक केमिस्ट्री के रिलेटेड ही है ना. Dalton's law, law of conservation of matter, none of the above. So it's all related to the chemistry only. Snell's law, it's सीखा है आपने, that is right. If the speed of light decreases in a medium, it is rarer than the first, denser than the first. That's right. Option B correct answer है. Yes, it's right. पता है ना आपको, when a ray of light goes from, say suppose this is a rarer medium, अगर ये rarer है, अगर ये denser है, so if a ray of light goes from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal. पता है ये रूल? That's right. क्यों bend होता है वो? What is the reason? Why does it bend towards the normal? Because उसकी speed क्या होती है? The speed decreases ना.
स्पीड डिक्रीज होती है, इस वजह से वो बेंड होती है. रिमेंबर दैट. चेंज इन द मीडियम, दैट्स राइट. ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस, और स्पीड डिक्रीज होने के कारण इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. वो तो करेक्ट है, चेंज इन द मीडियम है. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट, नो मीडियम कैन हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1. कोई भी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं हो सकता है. ट्रू या फॉल्स है? 100% ट्रू. क्योंकि आपको पता होगा द वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं हम? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और एयर का? 1. ऋतुज, वो जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहे हैं ना साइड में आपको, दैट इज द चैट ऑप्शन जो मैंने ओपन किया है. दैट्स व्हाई वो आपको ब्लैक दिखेगा. आपको क्वेश्चंस तो दिख रहे हैं ना, वो बोलो पहले. आर यू गेटिंग द क्वेश्चंस? और ये जो टिक करो वो तो दिख रहे हैं ना क्लियरली? हाँ, जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है ना, दैट वो मैंने चैट ऑप्शन ओपन किया है. वो चैट ऑप्शन है ओपन साइड में. तो मुझे आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं वो देखना चाहिए ना. यस कल्पेश, टेल मी व्हाट शुड आई टेल यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर 1 होता है, तो बाकी सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है. ओके, सी वैक्यूम और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना रुद्र, इट इज इक्वल टू 1. तो बाकी कोई भी मीडियम हो, वाटर हो, कोई भी वाटर, ऑयल, whichever is the medium, so हमेशा उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इन सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है. सिर्फ वैक्यूम और एयर का 1 होता है. ओके, और इससे नीचे किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं होता है. ओके, क्लियर है? गॉट दिस रुद्र? रुद्र एंड एवरीवन, सबको समझ में आया? यस, जो साइंस की बुक्स है, सीटी बुक है, उसमें से स्टडी कर सकते हो आप. यू कैन स्टडी दैट. बट आई विल टेल यू, जो भी मैं आपको शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी आपके टेस्ट होंगे, उतना भी किया, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू. ओके, जो मटेरियल हम प्रोवाइड करें, इट इज सफिशिएंट सीटी के लिए. When a ray of light is incident normally at the boundary between two media, then does not change in direction. बराबर है? ऑप्शन ए ना. Does not get refraction, passes undeviated. All of the above is the right answer. Correct. डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये तो करेक्ट है. रिफ्रैक्शन वोंट बी देयर ना, रिफ्रैक्शन नहीं होगा. पासेस अनडेविएटेड अलोंग द सेम पाथ, डेविएट तो नहीं होगा. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. यस, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है. यस, दैट्स राइट. डी इज द राइट आंसर. सी आर्या, सपोज फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ एयर मीडियम, अगर ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, मैंने थ्योरी लेक्चर में दिखाया था, आई थिंक आपको याद होगा कि अगर आपने पेंसिल को स्ट्रेट ऐसा इंसिडेंट किया, पेंसिल को अगर स्ट्रेट उस पानी में डाला तो वो स्ट्रेट दिखता है ना आपको. लेकिन अगर उसी पेंसिल को अगर आप स्लाइटली टिल्ट पोजीशन में डालते हो, स्लाइटली ऐसे टिल्ट पोजीशन, आई हैव टेकन व्हाइट, सो स्लाइटली आप अगर टिल्ट पोजीशन में डालते हो तो थोड़ा सा वो ब्रेक होता है. अगर आपने देखा होगा तो पेंसिल का एक्सपेरिमेंट, अगर आपने पेंसिल सीधा डाला हो तो वो सीधा अनडेविएटेड पास होता है. लेकिन आप स्लाइटली टिल्ट पोजीशन में डाल, सो डी विल से सम ब्रेक ओवर हियर, कुछ तो ब्रेक होना है. सो ये रिफ्रैक्शन है. दिस इज अ रिफ्रैक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट. वही तो डेफिनेशन है ना. सो अगर लाइट स्ट्रेट इंसिडेंट कर दिया, सो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 0. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 0. व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू, लाइट कैसे पास किया आपने? इट इज पास्ड इन अ नॉर्मल डायरेक्शन. यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, रिफ्रैक्शन भी 0 होता है. दैट्स राइट, करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर्स ऑल ऑफ यू, एवरीवन. क्लियर है? सबको समझ में आया? आर्या, हैव यू गॉट इट नाउ? ओके, वेरी गुड. यस, ओके समियान, परफेक्ट. refractive index depends on dash of the light in the medium. Intensity, brightness, velocity, none of the above. क्या? अरे velocity ना. So refractive index depends on the speed of light ना. सीखा है क्या आपने? स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, याद है क्या? That is equal to v1 upon v2 ना. It depends on the speed of light ना. So velocity is the right answer. ये फॉर्मूला है. ये म्यू मतलब म्यू क्या होता है? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज द मीन बाय म्यू? म्यू का मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यस, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? जो अभी लिखा ना संजू, जो मैंने अभी जस्ट लिखा था, देखो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं.
सो इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ स्नेल्स लॉ. ओके, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल कितना होता है? द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सिंपल है, ए इज द राइट आंसर. ये तो सबको आना चाहिए. ओके, yes, so A is the correct answer. That is nothing but angle of refraction only. Correct है, very good. Yes, Devika, it's right. Correct all of you, everyone. सब cancels right है. चलो next. When a ray of light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. Then ये तो पता है, अगर denser to normal जाता है, it bends away from the normal. Angle I is greater than angle X. So I think option C is right answer. बराबर है. अगर ray of light, suppose if this is a two medium, मान लो suppose this is a air, let us consider this is a water over here, let this be the normal. ये मैंने लाइन निकाली, ये नॉर्मल है. अगर ray of light जाती है, say suppose from denser medium in this way, if it is going from denser medium water to air medium, it bends away from the normal ना. So ये जो angle है x और ये angle क्या है? This is angle of incidence. So who is greater? So angle x is greater than angle I, which I can also say as angle I is less than angle x. हो गया solve. So C is right answer. Clear है? Everyone got this? All of you? सबको समझ में आया? हाँ या नहीं? Everyone clear है ना? Very good, very good. चलो perfect. That's good. Yes. Okay. When a ray of light travels from optically denser medium to an optically rarer medium, the ray denser to rarer जाता है, it bends away from the normal. Option B. अभी तो मैंने बोला, मतलब अभी just सिखाया आपको. So that would be the option B. It will bend away from the normal. बोलो हाँ या नहीं? Everyone clear है concept? Yes. Okay. Very good. Very good. Very good. Everyone. एक मिनट क्या कहाँ पे गया? Can't option C be the for question 11? नहीं, क्वेश्चन 11 के लिए C नहीं होगा ना. देखो, सो ये फिर से ये नॉर्मल हो गया. अगर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. इफ आई टेक दिस एज अ एयर मीडियम एंड इफ आई टेक दिस एज अ डेंसर मीडियम सच एज वाटर, सो द एंगल क्या पूछ रहा है? वो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे ना, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे रूपेश. सो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में क्या एंगल? उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रूपेश क्लियर है क्या? गॉट इट? सो इसके लिए एंगल ऑप्शन, उसके लिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए है. यस, दैट्स गुड. ओके, वेलकम रूपेश. दैट्स गुड. चलो नेक्स्ट. व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, डैश कलर बेंड्स द लीस्ट. कौन सा कलर लीस्ट बेंड होता है? मुझे लगता है रेड. ऑप्शन ए, रेड बेंड्स लीस्ट, है ना? यस, वॉयलेट कलर बेंड्स मोर. Ayush, A is the right answer. Red color bends least. अरे देखो क्यों ऐसा क्यों? मान लो अभी फिर से वही प्रिज्म वाला आर्टिकल लेते हैं हम. सपोज इफ आई टेक अ प्रिज्म ओवर हियर, ये प्रिज्म है. ओके, सो सपोज दिस इज अ नॉर्मल. इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस ऑफ प्रिज्म, मान लो सपोज दिस इज अ व्हाइट लाइट. सो आपने सीखा है ना ये. सो इट गेट डिस्पर्स इनटू हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है. ये पहला कलर और मैं अल्टर ये आएगा. सो सबसे पहला रेड आएगा, फिर वॉयलेट आएगा. एंड इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बराबर है ना? सो रेड कलर बेंड्स लीस्ट. रीजन? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट कलर. वेवलेंथ ऑफ द रेड इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट. नाही लीस्ट सांगितलं ना त्यांनी. दे हॅव टोल्ड यू कुठला कलर लीस्ट बेंड होतो, तर रेड कलर लीस्ट बेंड होतो. सो वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज अप्रॉक्स 700 नैनोमीटर टू वॉयलेट कलर अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर. इसका 400 होता है वॉयलेट का. सो इस वजह से मोर इज द वेवलेंथ, लेस इज द बेंडिंग. सो ऐसा एक फॉर्मूला है. द बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ. ये आपको हो जाएगा हायर लेवल में, 11 पे हो जाएगा ये. सो रेड कलर की वेवलेंथ कैसी है? बड़ी है ना. सो उसका जो स्कैटरिंग होगा उसका स्कैटरिंग लेस होगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली कल्पेश, इनवर्सली
रेड कलरची वेवलेंथ मोर तर स्कॅटरिंग लेस असणार आहे. असं असं असतं ते. हे तुम्हाला होईल ते 11th स्टैंडर्ड में. यू विल गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11th स्टैंडर्ड, और शायद आपको ये आईसीएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10th स्टैंडर्ड में हो गया था, रेले स्कैटरिंग लॉ. दैट्स राइट. जस्ट वेट, आई विल नेक्स्ट क्वेश्चन तब करने दो. न्यूमेरिकल विल ऑल्सो बी देयर. यस, न्यूमेरिकल इतना नहीं होगा, लेकिन थ्योरी पार्ट विल बी मोर. मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब थ्योरी ज्यादा होगा, न्यूमेरिकल वैसे भी आपको बोर्ड्स में कम ही देना. यस, दैट्स राइट. मोक्ष करेक्ट. In dash medium, light travels in a straight line. In which medium light travels in a straight line? Homogeneous. Homogeneous मतलब constant medium. Medium change नहीं होता है. So what is meant by homogeneous medium? Homogeneous medium का मतलब होता है constant medium. Heterogeneous मतलब two different medium. जैसे कि ये heterogeneous हो गया. अगर ये air है, ये water है, so these two medium ये क्या हो गया? Different है ना? Both are different from each other. So it is a heterogeneous. लेकिन मान लो ऊपर भी air है, नीचे भी air है, so this kind of medium is nothing but constant medium. उसे हम homogeneous medium बोलते हैं. Same medium, constant medium, so that it travels in a straight line. Okay. Crystalline medium, diamond मालूम है diamond? So crystalline, diamond का structure होता है, that is a crystalline. So अगर crystal, for example, ये suppose diamond का ऐसा कुछ prism, so there is a multiple reflection होगा यहाँ पे, ऐसा reflection zigzag in that way. So वो crystalline होता है. Yes, Vedant, I have already shared the sheet. You can just contact to the branch. आप branch को contact कर लो that you have not received the sheet. They will send you. Vacuum is constant in space. Space में vacuum constant है. That is a homogeneous medium. Ayush. For science, there will be 25 numericals. Nishant. Science हाँ, मतलब science मतलब physics, chemistry, bio मिला के 25 numericals होंगे. How many for physics वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया. कश्वी, वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया. हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया है. रुपेश देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यही सिर्फ फॉर्मूला है. इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, विच इज ऑल्सो डिफाइंड एज वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम. सो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन. स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर. तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये फॉर्मूला है. मुझे नहीं मालूम वो कितना साइंस, कितना फिजिक्स होगा और कितना केमिस्ट्री होगा, दैट आई डोंट नो, बट 25 क्वेश्चंस विल दे. 16 क्वेश्चन नहीं किया हमने. जस्ट वेट, आफ्टर दिस लेक्चर यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. आशीष, ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप शाम को नहीं, कल सुबह कांटेक्ट कर लो. यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. जस्ट कांटेक्ट द नेक्स्ट डे, तब तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन द ऑरेंज कलर. बोलो ट्रू या फॉल्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन द ऑरेंज कलर. ट्रू या फॉल्स? रीजन भी बोलना है, सिर्फ फॉल्स ट्रू मत बोलो. टेल मी द रीजन ऑल्सो. क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन ऑरेंज, क्यों लग रहा है? It bends more, it bends less, different wavelength due to the wavelength. Okay. So the correct answer is obviously option A. True answer है. Refractive index of blue color. See, refractive index of light is inversely proportional to the wavelength. पता है आपको ये? It is inversely proportional to the wavelength. Now अगर आप विबग्योर देते हो VIBGYOR, so red color की जो wavelength है, the wavelength of the red color is more, और विबग्योर की क्या लेस, म्हणजे wavelength will be in this direction. ऐसा होगा, सबसे ज्यादा फिर सबसे कम, या फिर ऐसे कर लो आप. असेंडिंग ऑर्डर में पहले ये आएगा, दिस विल बी असेंडिंग. सो ये ब्लू है ना पहले, सी दिस, द फर्स्ट वन इज ब्लू. सो ब्लू की वेवलेंथ कैसी है? हाउ इज द ब्लू वेवलेंथ? कम है ना. सो वायलेट की कम है, रेड की मैक्सिमम है. सो ब्लू की क्या है? कम. अगर ये ब्लू लेता हूं, सो ब्लू की वेवलेंथ कम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर. ऑरेंज कलर का कैसा है? वेवलेंथ इज मोर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस. तो उन्होंने क्या पूछा? लेस पूछा है. सो आंसर इज ऑब्वियसली इट इज फॉल्स. फॉल्स आंसर करेक्ट है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑरेंज कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज. तो ऑरेंज के लिए कैसा है वो बोलो? ऑरेंज की वेवलेंथ बड़ी है ना, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन द ऑरेंज कलर.
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, इट शुड बी द फॉल्स स्टेटमेंट. यस. अरे देखो, ब्लू कलर की वेवलेंथ ज्यादा, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है एज कंपेयर टू ऑरेंज. अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ये पता है क्या आपको? टेल मी दैट. ये पता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. अच्छा नहीं पता है, चलो अभी अभी पता हो गया. ये फॉर्मूला आप याद कर लो. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. अभी देखो, सो पहले मैंने ब्लू कलर ले लिया, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है ना, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज लेस. अगर वेवलेंथ लेस है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर. ऑरेंज के लिए उल्टा है, ऑरेंज के लिए वेवलेंथ मोर है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस. ओके, जो रेड कलर का लिखा है वो रहने दो क्या? अच्छा चलो ठीक है, वो रहने देता हूं. दैट आई विल नॉट रब दैट. समझ में आया? इजी है. सो आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया. सी, रेड कलर की कितनी वेवलेंथ है वो पहले देख लो. रेड कलर की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर और वॉयलेट कलर की कितनी है? अप्रोक्स 400 नैनोमीटर. तो आप मुझे बोलो, ये 400 हो गया, मान लो ये 5 6 ऐसा कुछ, जस्ट एग्जांपल. ये 4 हो गया, ये 500, ये 50, ऐसा कुछ ब्लू कलर की वेवलेंथ. मैं सिर्फ ये ब्लू कलर और ऑरेंज कलर कंपेयर कर रहा हूं. सो ऑरेंज इज नियर टू द रेड ना, ऑरेंज इज नियर टू द रेड. सो उसकी वेवलेंथ बड़ी है ना, उसकी वेवलेंथ बड़ी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हो गया. द स्टेटमेंट सेज दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर इज लेस. मैं क्या बोल रहा हूं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया ना, इट शुड बी लेस की जगह पे क्या चाहिए था? लेस की जगह पे क्या चाहिए था? इट शुड बी मोर ना, तब ये ट्रू होता. लेकिन उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दिया है लेस, तो फॉल्स हो गया ना. दिस इज फॉल्स. हो गया सॉल्व. आया समझ में सबको? एवरीवन गॉट दिस? ओके, यस. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अरे ये मैंने रब किया. अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट अभी नहीं करूंगा. ओके, आई हैव रब दिस नाउ. So I will now rub this. So remember that refractive index is inversely proportional to wavelength. So wavelength of blue color is greater than, wavelength of blue color is less than wavelength of orange color. So therefore refractive index inversely proportional होने के कारण refractive index of blue color is greater than refractive index of orange. Yes, that's right. Divanshu, correct. More wavelength, less refractive index. Velocity of light is greater in rarer medium than denser medium. Obviously true है, इसका तो true होना ही चाहिए. So speed of light in rarer medium is greater than the denser medium. हमेशा ऐसा true ही होता है, ये हमेशा true होता है. In a glass slab refraction occurs. So glass slab में refraction कितनी बार होता है? Once, twice, 4 times, 5 times. पता है ना? ग्लास स्लैब देखो, नहीं पता है. सो ये ग्लास स्लैब है. सपोज दिस इज अ ग्लास स्लैब ओवर हियर. से दिस इज अ नॉर्मल. किया है आपने प्रैक्टिकल शायद से. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और यहाँ पे व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. याद है क्या? देखो, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो ट्वाइस इज द करेक्ट आंसर. और आपने ये भी प्रूफ किया होगा दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई. ये प्रूफ है आपको टेक्स्ट बुक में है या 8th स्टैंडर्ड से करते हैं और ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट. दैट्स राइट. ग्लास स्लैब तो सिंपल एक्सपेरिमेंट, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड होता है. सो उसी एक्सपेरिमेंट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स 1.5 1.6 के आसपास होता है. यस आदिति, करेक्ट. चलो वेरी गुड. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट. वॉयलेट की वेवलेंथ अभी बोला, अभी अगर बोला ना किसी में मैक्सिमम, सो यस मिनिमम इज द राइट आंसर. गलती से भी ए नहीं बोलना है, मिनिमम इज द राइट आंसर. स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया था? नहीं, फॉल्स है. इट वाज सर आइजैक न्यूटन हु ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ना. सर आइजैक न्यूटन, फॉल्स है. आर्या 19th wavelength of the violet light is less ना. The wavelength of violet light is less than the wavelength of the red light. ऐसा ये रिलेशन, ये याद कर लो चाहिए तो फॉर्मूला, ये बहुत बार लगने वाला है. सो चाहिए तो ये फॉर्मूला याद कर लो. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? उल्टा है.
So refractive index of red color is greater than refractive index of violet color. Refractive index उल्टा है, यानी refractive index of violet color is less than, is greater than, refractive index of violet color is greater than refractive index of red color. ये याद कर लो, मतलब ये it will be easy for you. Red color is scattered in a greater amount than blue and violet color. True या false है? बोलो. False. Red color scatter नहीं होता, blue color scatter होता है ना. Blue और violet ज्यादा scatter होता है. It's false statement. Blue color of the sky, कौन सा color ज्यादा scatter होता है? So do you know the concept of blue sky? So which color scatters the more? That is the blue and violet color. More appropriate में blue color. So that is the reason behind the blue color of the sky. So yes, false is the correct answer. The refractive index of medium with respect to vacuum is called. क्या बोलते हैं हम इसे? ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैं सिखाता हूँ कंसेप्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज मान लो, से सपोज यहाँ पे मीडियम है, लेट अस कंसिडर दिस इज अ मीडियम वैक्यूम, और सपोज यहाँ पे मीडियम ले लिया, ग्लास ले लिया, चलो ग्लास लेते हैं. सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसे क्या बोलना है आपको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट RI लिखता हूं मैं शॉर्ट में. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट्स राइट प्रतीक. प्रणीत करेक्ट है. अगर मान लो सपोज वैक्यूम और एयर के अलावा अगर दूसरा कोई भी मीडियम है, दूसरा मान लो ऊपर वाटर है और नीचे ग्लास है, ऐसा अदर देन वैक्यूम और एयर, अगर दूसरा कोई भी मीडियम होता है ना, तो ऐसे रेशियो को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव. एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट कि हमेशा वैक्यूम और एयर, इन दोनों मीडियम में से अगर कोई भी एक मीडियम वैक्यूम और एयर होता है तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. लेकिन वैक्यूम और एयर को छोड़ के अगर कोई भी दूसरे दो मीडियम है, कोई भी वाटर ग्लास हो, डायमंड ग्लास हो, ऑयल ग्लास हो, ऑयल वाटर हो, बट देयर इज नो एनी वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, देयर इज नो एनी वैक्यूम और एयर, इसमें अगर वैक्यूम और एयर प्रेजेंट ही नहीं है किसी भी, मतलब इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऐसे रेशियो को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आया समझ में सबको? प्लीज रिप्लाई. एवरीवन गॉट दिस? यस, ओके. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, ओके. श्रद्धा, वेरी गुड. ओके राही, रुपेश, ओके. हे बघा, चला एकदम मी मराठीत एक्सप्लेन करतो. अभी मैं हिंदी में बोला, अभी मराठी में एक्सप्लेन करतो. चलो देखो, अभी परत सांगतो. हे दोन मीडियम आहेत, वैक्यूम आणि ग्लास. सपोज दिस इज अ मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. अगर इन दो मीडियम में से मीडियम 1 और मीडियम 2, कोई भी मीडियम, चाहे वो 1 हो या 2 हो, अगर इन दोनों मीडियम में अगर एटलीस्ट एक मीडियम वैक्यूम और एयर होगा, वैक्यूम और एयर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे रेशियो को हम क्या बोलेंगे? दिस रेशियो इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पॉइंट नंबर 1. ओके. यस प्रणीत, हे का स्टेटमेंट नंबर 1 समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड द स्टेटमेंट 1? सगळ्यांना स्टेटमेंट 1 कळालं? जर दोन्ही मीडियम पैकी जर कुठलाही एक मीडियम वैक्यूम किंवा एयर असेल ना, तर अशा रेशोला आपण ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बोलतो. पण असे काही मुले असे काही क्वेश्चन विचारतात की दोन्ही मीडियम मध्ये जर व्हॅक्यूम एअर नसेलच, म्हणजे मीडियम 1 वॉटर आहे, मीडियम 2 ग्लास आहे, किंवा मीडियम 1 ग्लास आहे, मीडियम 2 वॉटर आहे, जिथं व्हॅक्यूम आणि एअर हे मीडियम प्रेझेंटच नाहीयेत, कुठल्याही दोन मीडियम मध्ये व्हॅक्यूम एअर प्रेझेंट नसेल, तर ह्याला आपण काय म्हणतो? त्याला आपण म्हणतो रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. झालं सॉल्व्ह. दोन्ही मीडियम पैकी कुठलाही एक मीडियम व्हॅक्यूम एअर असेल तर त्याला ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणायचं. जर दोन्ही मीडियम मध्ये व्हॅक्यूम एअर नसेलच तर त्याला आपण म्हणणार रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. संपलं. आता समजलं का आर्या? एव्हरीवन, सगळ्यांना कळालं? व्हेरी गुड, परफेक्ट. इट्स सो सिंपल. हा, असंच राहू दे. ओके. पार्शियल और सेमी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है धनंजय. पार्शियल आणि सेमी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नसता असं काही. क्रिस्टलाइन मीडियम नहीं, सो जो क्रिस्टलाइन मीडियम होता है उसमें बहुत कंसेप्ट आते हैं, फिर उसमें रिफ्लेक्शन भी आता है, रिफ्रैक्शन भी आता है क्रिस्टलाइन में. सो डायमंड देखो, अगर आपने डायमंड देखा होगा तो वो शाइन होता है ना. व्हाई डज द डायमंड शाइन? डायमंड इतना शाइन क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन?
सो अगर ये सपोज डायमंड है तो ये शाइन क्यों करता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होता है लाइट और फिर जाके बाहर आती है वो लाइट। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होने के कारण वो डायमंड शाइन करता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इतना वो उस शाइन कर। और डायमंड को बनाते समय वो पर्टिकुलर प्रॉपर एंगल से उसको बनाते हैं, वो जो क्रिस्टल है ना, दे अरेंज द क्रिस्टल इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर ऑर्डर से उसको अरेंज करने के बाद जब इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तभी वो डायमंड क्या होता है, शाइन होता है। सो दैट इज अ केस ऑफ अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की केस है। विच विल बी द रेडियल मीडियम बिटवीन वाटर एंड ग्लास। देख लो, प्रैक्टिकल करके देखना है आपको। अगर आपने लाइट सपोज कैसे करोगे, ये बहुत सिंपल है, कैसे पहचानोगे कौन सा रिले कौन सा क्या बोलते हैं, विच इज द रेयर एंड विच इज द डेन्सर मीडियम, कसं ओळखणार, कुठला रेयर एंड कुठला डेन्सर है, कसं ओळखणार? सिंपल है, लाइट को भेजो। सो अगर लाइट को आपने इंसिडेंट कर दिया, अगर वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है तो ग्लास इज अ डेंसर, अगर ये अवे फ्रॉम द बेंड होता है सो ग्लास इज अ रेयर मीडियम। आपको स्पीड ऑफ लाइट देखना है, कहां पे बेंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, सो ग्लास क्या होगा, दैट विल बी द डेंसर। सो इन दिस केस द ग्लास विल बी डेंसर मीडियम, ये डेंसर हो गया। अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है तो ग्लास क्या हो गया, सो ग्लास विल बी द रेयर मीडियम, हो गया सॉल्व। अगर दोनों भी एयर और वैक्यूम होता है सो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन ना, रिफ्रैक्शन क्यों होगा फिर वेरी का, अगर ऊपर भी वैक्यूम है, इफ सपोज देयर इज अ वैक्यूम और नीचे भी वैक्यूम है, सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा ना। सो इन दिस केस लाइट वुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन ना, लाइट डेविएट नहीं होगी, कहां से भी कहीं भी सेंड कर लो, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी वो। गणित असं होणार नाही, मायन्यूट टिल्ट नाही होणार, भरपूर डिफ्लेक्ट होतं ते। जर मीडियम दोन्ही वेगळे असेल ना तर भरपूर डिफ्लेक्शन होतं, मायन्यूट टिल्ट नाही होत। यस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो डायमंड शाइन करता है, दैट्स राइट अथर्व। टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर बेंड होता है दैट इज अ डेंसर मीडियम, मानसी। इफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल दैट इज अ डेंसर मीडियम, ओके। ये आप चाहिए तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, इफ लाइट, अगर लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, इफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो द मीडियम क्या होता है, सो इन दिस केस द मीडियम इज, कौन सा मीडियम होता है, दैट इज अ डेंसर मीडियम। एंड वाइस वर्सा, उल्टा, इफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, सो कौन सा मीडियम होगा, दैट विल बी द रेयर मीडियम। ओके आर्य, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ विद एनोटेशन। ओके, इतने ही एनोटेशन किए मैंने शायद से, सो ये मैं सेंड करता हूँ। होमोजीनियस इज द सेम मीडियम, नील, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। अगर मीडियम सेम है तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं, अगर मीडियम डिफरेंट है, इफ द मीडियम आर डिफरेंट सो दैट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोजीनियस मीडियम। वैक्यूम और एयर नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा रुचा अगर कुछ भी नहीं होगा तो वैक्यूम प्रेजेंट होता है, एब्सेंस ऑफ ऑल द मीडियम इज वैक्यूम रुचा। सभी मीडियम अगर एब्सेंट है ना तो वैक्यूम प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। वैक्यूम को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, हाउ यू डिफाइन द मीडियम वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑल द मीडियम, एब्सेंस ऑफ ऑल मीडियम, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम। यस, ओके, हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर आपके डाउट सॉल्व करते हैं। ओके, वी विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस देन वी विल सॉल्व योर डाउट, दैट विल बी बेटर। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच आर आईज आर सेंसिटिव, हमारे आईज कौन से वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव होता है, अभी मैंने बोला 400 to 700। सो 400 किसका है, सो 400 नैनोमीटर, दैट इज रिलेटेड टू द ब्लू कलर ऑफ लाइट, ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है। एंड 700 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ है, दैट इज अ रेड कलर, ब्लू या ब्लू नहीं वॉयलेट, हाँ। सो 400 इज वॉयलेट एंड 700 इज द रेड, हाँ, ब्लू वॉयलेट सेम रेंज में आता है वो तो, चलो ठीक है, क्लियर है, वॉयलेट एंड द रेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन does not change the light rays. So in the phenomenon of refraction which of the following does not change, कौन सा चेंज नहीं होता है, ऑप्शन डी। मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। सो मान लो कैसे आएगा वो देखो, सपोज दिस इज अ नॉर्मल ओवर हियर, से सपोज फिर से वही, ये एयर ले लिया, ये वाटर ले लिया, इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये पता है आपको। सो इसमें क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी स्टडी किया है 9th स्टैंडर्ड में,
नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, जितने वाइब्रेशंस यहाँ भी होंगे उतने ही वाइब्रेशन यहाँ पे भी होंगे. So number of vibrations completed in 1 second is nothing but that is called as a frequency. How you define frequency? It is defined as number of vibrations completed in 1 second. Short में लिखता हूँ completed in how many second? In 1 second. तो उसे हम frequency कहते हैं. That's right, तनिष्क. हर एक कलर का हर एक वेवलेंथ अलग होता है. वॉयलेट कलर का वेवलेंथ 400 है, सो वेवलेंथ चेंज होता है, इस वजह से कलर चेंज होता है. यू कैन ऑल्सो से दैट. यस यस, आई विल शो यू द पीडीएफ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन. आई विल शो यू द पीडीएफ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हाँ, ऑसिलेशन भी बोल सकते हो आप प्रणीत. यू कैन ऑल्सो से एज ऑसिलेशन. वाइब्रेशन को आप ऑसिलेशन भी बोल सकते हो, दैट इज ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है. आफ्टर डिस्पर्शन डैश कलर डेविएट्स मोस्ट. कौन सा डिस्पर्स होने के बाद कौन सा कलर डेविएट होगा? अभी ये भूलना मत. हाँ, ये क्वेश्चन आई थिंक फिर से रिपीट है, लेकिन ये आपको याद करना होगा. सो इसका आंसर गलत मत देना. वॉयलेट कलर बेंड्स मोस्ट. रेड कलर अगर लीस्ट बेंड होता है तो वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है. चलो नेक्स्ट. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज. वैक्यूम में कितना स्पीड होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दैट्स राइट. स्पीड ऑफ लाइट पता है ना आपको? ये ए मत बोलो, ऑप्शन बी है. It's 3 lakh kilometer in 1 second. 3 lakh kilometer in 1 second. देखो कितनी ज्यादा स्पीड है. 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो? इट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 लाख किलोमीटर. सो एका सेकंड मध्ये लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रॅव्हल करते. समजत म्हणजे ती स्पीड किती अल्टिमेट स्पीड आहे ती. ओके, क्लियर है? एवरीवन गॉट दिस? सो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. ये अभी अभी मैंने आई थिंक शायद बोला ऊपर ही क्वेश्चन में. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? 0 होगा. परफेक्ट है. ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था. हाँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो बी द 0. किलोमीटर. ईशान, यू हैव नॉट सीन द किलोमीटर. आई थिंक आपने किलोमीटर नहीं देखा होगा. किलोमीटर ये तो हो गया 3 लाख, बराबर ने? 1 2 3 4 5. और किलोमीटर, किलोमीटर मतलब और 1000 आएगा ना. अब हो गया क्या? 3 × 10⁸. इट्स ओके ईशान, नो नीड टू सेट सॉरी. टाइम ट्रेवल के लिए यही स्पीड लगती है, दैट्स राइट. लेकिन टाइम ट्रेवल अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन होगा वो कभी ना कभी पॉसिबल. आई होप सो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. ट्रू है? यस, दैट इज ट्रू ना. स्पीड ऑफ लाइट हर एक स्पीड की. एयर में स्पीड कितनी है? सो एयर और लाइट में, एयर में और इसमें स्पीड कितना है? 3 × 10⁸. वाटर में कितना होता है? दैट इज 2 × 10⁸ आएगा. दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. एयर में 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, वाटर में 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है. और इस वजह से आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, दैट इज 3/2 1.5 आ जाएगा. ओके, क्लियर है? सो डिफरेंट है. When the ray of light is incident normally on a surface separating two media, angle I is 0 90. ये अभी हुआ है, सेम क्वेश्चन है ये. अगर I 0 है and angle of refraction will be 0, that means this light is traveling in normal direction. So in this case, light is traveling in normal direction. अगर I 0 तो R भी 0, तो लाइट नॉर्मल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. उसका उल्टा, वो क्या पूछ रहे हैं? अगर लाइट नॉर्मल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो I कितना होगा? 0. और एक क्वेश्चन ऐड करता हूं, R कितना होगा? R विल बी ऑल्सो बी 0 डिग्री. क्लियर है? नहीं, नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली का मीनिंग परपेंडिकुलर ही होता है. सी देखो, नॉर्मल का क्या मीनिंग होता है एवरीवन? So this is nothing but ये line है which separates the two media. XY is the line which separates the two media. A perpendicular line drawn to the XY plane. So this is nothing but this is a normal. ये normal होता है, okay? लेकिन ये 90 डिग्री किसके साथ है? This is related to X and Y. अगर लाइट को ऐसे मैंने सेंड कर दिया तो एंगल I कितना होगा? एंगल I will be 0 and एंगल R भी कितना होगा? 0 होगा. Okay? क्लियर है? एवरीवन गॉट दिस? अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कर लो, ऐसे समझ के ले लो. देखो अगर ऐसा आता है तो.
सो अगर ये एक्स वाई प्लेन है विच सेपरेट्स द टू मीडिया, मान लो ऊपर मीडियम एयर है, नीचे मीडियम क्या है, वाटर, तो ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है एक्स वाई के साथ, दिस इज 90 डिग्री, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड केस, मान लो अगर लाइट को मैंने ऐसे छोड़ दिया, इफ आई इंसिडेंट लाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके, ये एंगल 30 डिग्री आ गया, बराबर है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 30 से कम होगा, बोलो हाँ या नहीं, बिकॉज इट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है ना, सो इट विल बी लेस देन 30। ओके, चलो और एक करते हैं, अगर मान लो मैंने लाइट को ऐसे छोड़ा और थोड़ा कम एंगल से छोड़ दिया एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, तो ये और थोड़ा नीचे बेंड होगा ऐसे 20 डिग्री पर, अब ये एंगल 20 डिग्री हो गया, तो ये और थोड़ा बेंड हो गया, ऐसे करते 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 एट लास्ट अगर मैंने लाइट को इस एंगल से छोड़ा, अब ये 10 आएगा, फिर 7 डिग्री आएगा, 5 डिग्री आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, अगर स्ट्रेट छोड़ा तो पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे था और कम कर दिया, आई कितना होगा 0, तो ये और एंगल छोटा होता जाएगा ना, ये वाले जो एंगल से ये छोटा, इट विल बी व्हेरी व्हेरी स्मॉल ना, हे अजून कमी होत जाईल, मग एंगल आर पण किती येईल, व्हाट विल बी एंगल आर, आर भी कितना आएगा 0, हो गया सॉल्व, आया समझ में, अब क्लियर है कंसेप्ट, एवरीवन अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, अब ठीक है, स्पीड चेंज होगी, लाइट की स्पीड चेंज होगी, अगर लाइट को अपने नॉर्मल डायरेक्शन में सेंड किया स्पीड चेंज होगी, स्पीड विल बी चेंज बट देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, स्पीड तो चेंज होगी लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सिर्फ इसी केस में प्रियंका, जितना आई होगा उतना ही आर, सिर्फ इसी केस में इक्वल है, बाकी के केस में आई और आई इक्वल नहीं होते हैं, ओके, बाकी के केस में आई एंड आर इज नॉट इक्वल। नॉर्मली मींस 90 डिग्री, आयुष नॉर्मल का मीनिंग होता है 90 डिग्री, उन्होंने नॉर्मल का, उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, अगर रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस इन नॉर्मल डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब लोग ठीक से पढ़ लेना, ओके, दे आर आस्किंग द रे ऑफ लाइट इन नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे दिया है देखो, व्हेन द रे ऑफ लाइट इन नॉर्मल डायरेक्शन, तो आई कितना आएगा 0 आएगा, गलती से 90 मत लिखना, आर यू गेटिंग दिस, एक्चुअली द फिजिकल मीनिंग ऑफ नॉर्मल, फिजिकल मीनिंग ऑफ नॉर्मल होता है 90 डिग्री, नॉर्मल का मीनिंग परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर रे ऑफ लाइट को नॉर्मली भेजा तो आई कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। सबको कंसेप्ट क्लियर है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, इफ आई इज 90 डिग्री देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन ना, अगर लाइट को ऐसे छोड़ दिया तो लाइट सीधे ऐसे ही जाएगी ना, सी दिस इज अ नॉर्मल, सो आप क्या बोल रहे हो, अगर लाइट को 90 डिग्री से एंगल से छोड़ दिया, सो इट विल गोइंग टू ट्रैवल ऑन द सर्फेस ओनली ना, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सो सरफेस पे ट्रैवल करेगी ना वो, सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ आई इज 90 डिग्री, सो आर कितना आएगा, आर भी 90 डिग्री आएगा, ओके, चलो 90 डिग्री आपको कभी नहीं लेना है, 90 डिग्री का मतलब नॉर्मल होता है अक्षता, 90 डिग्रीचं मीनिंग नॉर्मल असतं, तेवढंच लक्षात ठेव, पण जर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इन्सिडेंट केलं तर अँगल ऑफ इन्सिडेंस 0 असतं, ओके, हाँ चलो दैट्स गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 30 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक्चर, वी कैन सी द सन इवन आफ्टर इट इज लिटिल बिलो द होराइजन बिकॉज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्पर्शन, क्यों, इट्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली, ये थ्योरी में हुआ है आपको, यू हैव लर्न दिस इन द थ्योरी पार्ट, इट्स ड्यू टू द व्हाट यू से, ये 90 डिग्री रब करता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये भी रब करता हूँ, ये भी रब करता हूँ, सो ये एंगल आर 0 डिग्री, हाँ रिफ्रैक्शन, डिले सनसेट, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, दैट्स राइट वरत, वेरी गुड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 या 1 आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो से इट इज ग्रेटर देन 1 ओनली, बराबर है, इट्स ग्रेटर देन 1, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 क्या है, सो मीडियम 1 मैंने ले लिया एयर, मीडियम 2 क्या है, सपोज मीडियम 1 ले लिया वाटर, निकालो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में कितना होता है, एयर और वैक्यूम दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम होता है, 3 into 10⁸, वाटर के लिए कितना है 2 into 10⁸, ये कैंसिल हो गया, सो 3/2 कितना आएगा 1.5, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हेंस प्रूफ इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक दो स्पीड तो आप हमेशा याद ही रखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में स्पीड कितना होता है ये याद ही कर लो आप, 3 into 10 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये भी आप शायद याद कर लो, दैट इज कितना आता है 2 into 10⁸, सिर्फ एक से कम, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न आंसर, एक से कम करना है, दोनों का रेशियो ले लो, इट इज ग्रेटर देन 1, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट्स करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल मीडिया, फॉल्स है, yes, I think that is a false. For shadow to be formed, the object lying in the path of light should be opaque, transparent, translucent, none of the above. For a shadow to be performed, the object lying in the path of light should be, कैसे होना चाहिए, shadow चाहिए तो it should be opaque. Option A, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ओपेक मतलब लाइट पास नहीं हो सकती है, जैसे कि मान लो सपोज इफ आई टेक एनी बुक हो, ये बुक है, ओके, एंड से सपोज देयर इज अ लाइट इज देयर, ऐसी कुछ लाइट है, से कंसीडर दिस इज अ लाइट, ऐसी नहीं होती है, चलो ठीक है, ऐसी कंसीडर दिस इज अ लाइट हो गया। सो ये लाइट बुक के एज थ्रू यहाँ पे आपको जो दिखेगा, देयर विल बी द शैडो ओवर, यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी द शैडो ना। नो यू डोंट हैव टू रिपर एनीथिंग सांची, ये सफिशिएंट है आपको, ओके, दिस इज सफिशिएंट। सो इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, मतलब दिस पीडीएफ इज सफिशिएंट टू ऑल ऑफ यू, और जो टेस्ट आप दोगे वो सफिशिएंट है, वो इतने ही क्वेश्चंस कर ला। ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट आल्सो हैव अ शैडो डोंट है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल केस में मोस्टली ओपेक का मैक्सिमम शैडो होता है, ट्रांसक्यूलेंट का भी होता है, आई एम नॉट सेइंग इसका नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन एज कंपेयर टू ओपेक, ओपेक का मैक्सिमम ज्यादा पूरा दिखता है ना शैडो। वो टेस्ट आपको होगा, मतलब उसका आपको डिटेल्स, यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट आफ्टरवर्ड्स, कश्वी, एक 2-4 लेक्चर होने के बाद वी विल कंडक्ट द टेस्ट, आई थिंक एवरी संडे ऐसा कुछ टेस्ट होगा, आप देख लेना, मतलब यू विल गेट दैट। शैडो इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ द लाइट ना, नील, एब्सेंस ऑफ लाइट। सी शैडो का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे इस रीजन में लाइट नहीं है, देयर इज अ लाइट हियर ऑल्सो, यहाँ भी लाइट, यहाँ तक लाइट आती है, यहाँ तक लाइट आती है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है, देयर इज नो लाइट। नो लाइट का मीनिंग होता है शैडो। Yes, you will get the timetable for the test as well. That's right, Arya. Test starts from 4th August daily. Yes, okay. Yes, Vedika, I will share you this sheet. मैं फिर से sheet share करता हूँ. After this lecture, I will share this sheet again. Yes, Yash, कहाँ पे look? 35, 34 का क्या है? Light can bend under some special circumstances. True या false? It's true. लाइट बेंड होती है ना, सो शैडो में वही तो कंसेप्ट है, लाइट बेंड अलोंग द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल। अगर ये ऑब्स्टेकल है सो लाइट यहाँ पे बेंड होती है, सो अगर ये ऑब्स्टेकल ऐसे बेंड होती है, देयर इज अ शैडो हियर, सो दिस इज नो लाइट, सो दैट इज अ शैडो, सो इट बेंड्स अलोंग द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के एजेस थ्रू लाइट बेंड हो सकती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेम है, लाइन है सेम प्लेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सिंपल है, ये तो आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ था रिफ्लेक्शन का, सी बोथ 1 and 2, 10th स्टैंडर्ड में भी हुआ है फॉर स्टेट बोर्ड, ये दिस आर्टिकल इज कंप्लीटेड इन 9th स्टैंडर्ड, सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ 1 and 2, ओके। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वर्कशीट, हमारी वर्कशीट क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई। सो ये मैं आपको भेजता हूं, रेंज ऑफ आइज टू बी सेफ, द विजिबल लाइट, सो इफ द लाइट, अगर लाइट की वेवलेंथ 400 से लेकर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है, सो दैट इज अ सेफ रेंज, इट्स अ सेफ रेंज। सेफ रेंज बोलने से अच्छा है, दैट इज यू कैन सी दिस इज अ विजिबल टू आवर आईज, ये जो लाइट है इट इज विजिबल टू आवर आईज। Shalmali, I don't know that. What are the special circumstances in 34th question? Along light can bend along the edges of the obstacle. So obstacle, मान लो अगर ये obstacle है, कोई भी obstacle, so edges के along वो bend होता है,
जैसे मान लो अगर आपने देखा होगा फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ ड्यूरिंग से दिस इज अ सन इज ओवरहेड ओवर यू, सपोज इफ यू टेक अ फुटबॉल ओवर हियर, सो सन की लाइट अलोंग ऑब्स्टेकल ऐसी बेंड होती है, स्लाइटली बेंड होती है, और जो आपको ग्राउंड पे दिखता है ना ऐसा, दिस इज अ ग्राउंड, सो ग्राउंड पे आपको सर्कल दिखेगा ना, वो ग्राउंड पे सर्कल दिखेगा ना, सो ये जो ग्राउंड पे वो जो फुटबॉल का जो सर्कल होगा, दैट इज देयर इज अ नो लाइट, सो दैट इज अ शैडो। सो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे लाइट बेंड होती है। So this is a special circumstances where the light bend. Rushikesh, see suppose there is a sun over here. ये क्या है? Suppose there is a football. यहाँ पे मैंने फुटबॉल ले लिया. So football is a sphere ना? फुटबॉल क्या है? It is a spherical object. ये sphere है. So slightly edges पे क्या होता है? Edges पे slightly bend होता है वो. Edges पर वो slightly bend होता है. There is a formation of shadow over here. Yes. न्यूमेरिकल्स इतना नहीं आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्योरी पार्ट विल बी देयर। इस चैप्टर में तो इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है। जो नेक्स्ट चैप्टर जो कल के लेक्चर में होगा, दैट वी विल टेक अ न्यू टॉपिक, दैट इज अ लेंसेस। एक बार पढ़ लेना वो टॉपिक आप लोग। कल मैं लेंसेस के बारे में लेने वाला हूँ। लेंसेस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, पता है ना आपको, तो उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। वी विल टेक द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। यस, टेक अ लुक, आप सिर्फ एक बार पढ़ लो वो। यस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नाही, मोर वेटेज दे हॅव नॉट स्पेसिफाईड. सायराज त्यांनी काय स्पेसिफाईड नाही केलं की कुठल्या टॉपिकला जास्त वेटेज आहे, असं काही सांगितलं नाहीये. सो 800 नैनोमीटर जो होगा, दैट रेड के जो आपको वो कलर नहीं दिखेगा, यू विल नॉट एबल टू सी द कलर थ्रू योर आईज, वो कलर आपको विजिबल नहीं होगा अगर 800 के ऊपर जाता है तो। सो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, सो आपको वो नहीं दिखेगा. टुवर्ड्स नॉर्मल मीन्स, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या है लिखा ना मैंने, व्हेन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो दैट इज अ, कौन सा मीडियम है वो, rarer medium. If it bends towards the normal, so denser medium, away from the normal, so rarer medium. ऐसा कोई कलर नहीं होता है. सो अबव 800 एंड बिलो 400 देयर इज नो एनी कलर, कोई भी कलर नहीं आता है. अबव 800 एंड बिलो 400 कोई भी कलर नहीं होता है. Contact to the branch, just contact to the branch, you will get the recording. Okay, चलो, we will stop now. So thank you to all of you, thank you everyone. I will share you this PDF, जो annotate किया हुआ PDF है वो आपको मैं share करता हूँ. So yes, we will stop over here. So thank you all of you. चलो, bye everyone. Yes, bye all of you. Bye to all. Have a good day. Same to you. Yes, चलो, bye, bye, bye everyone. Bye all of you. Bye to all.